opening stock and closing stock wala adjustment was same, no problem over there. Only thing was your outstanding expense. Outstanding expense of last year, उसमें से 40,000 only was paid. So you were supposed to subtract only 40,000, and remaining 10,000 was still outstanding. जैसे subscription में still in arrears होता है, वैसे यहाँ पे still outstanding. So they go to current year's liability. Okay, current year's liability. So that was the only difficult adjustment. Take your standard textbook. Today we are solving from standard textbook. Take out standard textbook, all of you. So any doubts in the papers, test papers, all of you got? Marks, totaling, corrections, any issues, tell me. Did you go through the mistakes and all? Test papers, mistakes मिला सबको? Scores are quite less in the, but 75. 75 was the ideal score in this paper, okay? 70 is the ideal score. Below 75, not good. Below 70, you need to work very hard. Simple as C2, don't repeat the mistake. जिसका timing issue था, try to complete it. There were 4-5 students who were not able to complete the paper. जिसका timing issues हुआ है, work on that. And mostly, as I told you before the paper only, majority of the mistakes happened in final accounts, death of a partner, and objectives. Objectives, like silliest of the silly mistakes I have found. Out of 15 people are scoring 9, 6, 7. That is a disaster. If you are losing 6 marks in objectives, that means 1% of your paper, 1% of your year, 12th standard. You are losing in the easiest of the question. So take care of that. Did you get the answers and everything? Any doubts in the solution part? You can go through Adit's paper, Yash ka paper for solutions and all. Presentation wise, I think one of the best presentation with scoring and all was Yash ka paper. Adit ka thoda presentation issues hai. Improve on that. Yash has done fairly well, and even there was one more paper with 77 something. I don't remember now. There are 2-3 paper about four papers. I think 5 papers about 75. Check those. Okay, for presentation and all. So below 70 तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. Below 70 to too much. And some of you have lost marks, Smiti, Dhwani, in silliest of silly mistakes. Hates paper is good presentation wise also. Hates paper you can see. Hed, how much you got? 74.5. 4.5, yeah, good enough. Hates paper you all can refer. Hates paper is good presentation wise. Okay. Please turn on the videos, all of you. Khwahish, how many questions? 2 questions you left or what? Khwahish.
वीडियोस ऑन चाहिए, देवीसी, देव, महकी, यश, अदित, क्रिश, सुहानी, ध्रुव, अविक, पार्श्व. Off videos will be out. Khwahish, why you left 2 questions? So I couldn't complete the paper. 2 questions, matlab it's too much, yaar. Too much it is. Improve the speed. Come on, increase the speed. Gonna be lengthy. अगर नहीं हो रहा है अभी तो ये थोड़ा ज्यादा लेंदी था, बट एटलीस्ट यू शुड हैव बीन एबल टू कंप्लीट द पेपर ना, क्योंकि बोर्ड्स में तुमको कंप्लीट करके 15-20 मिनट रीचेकिंग के लिए बफर रखने का है, सेविंग. इधर टाइम पे होगा तो उधर कंप्लीट होगा. Riya's paper was good. Riya has done fairly well this time. Riya has done well. Yashvi's paper was... Yashvi, how much you got, Yashvi? 76. 76. Very good. Yashvi's paper is good with presentation, scoring and all. You can refer to that. Okay. Check, revise. Mokshit has done good. Krisha has done good. Krisha has got how much, Krisha? 70? 74. Fair enough. कॉपी नहीं किया ना? कॉपी नहीं किया ना थोड़ा भी? खुद से किया पूरा? पूरा खुद से किया? पक्का? ओके. खुद से किया है तो बहुत अच्छा है. ठीक है. See the mistakes again and again. I'm telling you, don't repeat them. Okay. So below 70, work very hard on practice, written practice. At least 2-3 problems from the chapter where you have lost marks, write it and solve it. 2 to 3 problems, write it and solve it, and see to it you crack it within the given time. जो आपको दिया हुआ था मॉडल टाइमिंग 15 minutes and 20 minutes, उसके अंदर क्रैक करने का ट्राई करो the given chapter where you have lost marks, whether it is bill of exchange, whether it is death of a partner or final accounts. Within 30 minutes try to crack it. तो ही होएगा. इधर ये 30 minutes में होता है तो वो 25-30 में होके बफर टाइम मिलेगा 15-20 मिनट बोर्ड्स में. 15-20 मिनट तो रखना ही है स्पेयर बोर्ड्स में. आपका पेपर आउट ऑफ 3 hours should be able to be you should be able to complete it within 2 hours 30 minutes, 2 hours 40 minutes. रीचेकिंग के लिए टाइम चाहिए वहां पे अपने को. चलो टेक आउट एनपीओ क्वेश्चन 15 पेज 100, standard textbook page 100. It's there on the screen if you can check. Okay, mark it down. Tell me, opening balance of bank overdraft किधर जाएगा ये? Very first line you have bank overdraft. Krishna Junior College, Mahabaleshwar. Where will you put opening balance, bank overdraft? Last year liability. Last year liability. Salary to teacher is what? Expense. Salary to staff is expense. Books are what? What are books? Asset. Why have they given that date 1/7/19? Depreciation. Depreciation. 31st March का ending है. So July to March. Bought it in this year obviously because payment side पे है. So current year में it will be for 9 months. Okay, depreciation will come but for 9 months. Printing and stationery is expense. Office rent is expense. Repairs are expense. Sports expenses are expense. Annual gathering expense are expense. Furniture is asset. Furniture is again bought on 1/1/20. So how many months depreciation you will charge?
How many months depreciation you will charge? Bolo. 3. 3 months. 31st March 20 is the current year's end. So 3 months depre. Cash at bank is asset. Cash in hand is current year asset. These are closing balance. Closing में कोई bank overdraft नहीं है, ठीक है? Opening में there was bank OD. Closing में there is no bank OD. Opening balance of cash. Where you will put opening balance of cash? So last year asset. Opening balance of cash will go to last year's asset. Tuition fees दोनों दिया हुआ है 18, 19, 19, 20. What is the current year? Which is the current year? 1920. 1920. So 1920 वाला जाएगा इनकम में और 1819 वाला जाएगा लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि वो लास्ट ईयर का रिसीवेबल था. 77,000 जो आउटर कॉलम में दिया है उसको सिंपली इग्नोर करना है आपको, ठीक है? वो टोटल है. फाइन कलेक्टेड इज ऑल्सो इनकम. इंटरेस्ट ऑन बैंक इज ऑल्सो इनकम. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट वो पूरा साथ में है. एडमिशन फीस के बारे में पढ़ो, दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2. क्या दिया हुआ है? 50% of the admission fees needs to be capitalized. So आधा capitalized और आधा income. Half capitalized and half income. Donation for prize fund. What are we supposed to do with donation for prize fund? Liability. Donation for prize fund is liability. Specific purpose का fund है. Endowment fund बोलते हैं इसको. टू गवर्नमेंट ग्रांट्स. ग्रांट्स नहीं हो, ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है पढ़ो यहाँ पे. 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स नीड टू बी कैपिटलाइज्ड. तो आधा कैपिटलाइज है, आधा इनकम है. इज दैट क्लियर? Coming to the adjustment for current year 1920, tuition fees are outstanding. What are the two effects of current year outstanding fees? What are the Add effects of asset. add assets? Current year fees में add and assets. 50% of admissions need to be capitalized. We have done that. Outstanding salary to teachers are 12,000. देना बाकी है. तो क्या करोगे? ये कुछ नहीं दिया, current year outstanding है. Add to salary and liability. Depreciate books and furniture. So less from asset and expenditure. 50% government grants. Assets and liabilities on 1st April 19. What do you mean by 1st April 19? Last year asset. 1st April 19 लास्ट ईयर एसेट एंड लाइबिलिटी है. बिल्डिंग जाएगा लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. फर्नीचर जाएगा लास्ट ईयर एसेट से करंट एसेट. बुक्स जाएगा लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. बैंक डिपॉजिट भी लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. ट्यूशन फीस रिसीवेबल देखो वापस आया. हाउ मच वाज ट्यूशन फी रिसीवेबल लास्ट ईयर? हाउ मच वाज ट्यूशन फी रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर? 7,000. देखो नीचे देखो एकदम लास्ट हुआ है 7,000. ऊपर चेक करो कितना दिया हुआ है. लास्ट ईयर का कितना रिसीव किया है हमने? 7,000. 7,000. So is there any fee still in arrears? कोई फी No. स्टिल इन अरियर्स है? नहीं. जितना 7 लास्ट ईयर रिसीवेबल था उतना ही रिसीव किया हुआ है. बराबर है. स्टिल इन अरियर्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं है. पूरा रिसीव कर लिया है. बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे. ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट. वही रिपीट करके दिया हुआ है नीचे भी बैंक ओवरड्राफ्ट. इट इज वन एंड द सेम. कैन यू गाइस सी दैट? बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा सबको? हेलो. सो ओपनिंग बैलेंस ही है वो. वैसे भी लास्ट ईयर लायबिलिटी लिखना था. वापस करके कोई इफेक्ट मत देना. अच्छा कैपिटल फंड दिया हुआ है प्रॉब्लम में. डू यू हैव एनी कैपिटल फंड? नो. सो हाउ मेनी बैलेंस शीट्स यू नीड टू मेक? 2. Balance sheets. Come on, start with the problem. 15 minutes. 7:49. 8:05 तक टैली करना चाहिए, होना चाहिए. 15 minutes. That's the board time. That's the board level. Start. Solve it on your own. Come on.
Furniture and books are coming from last year, okay? So डेप्री करते वक्त पहले क्या करना है? डायरेक्टली डेप्री करना है कि what is the order on fixed assets? Last year asset, फिर current year और फिर debt. Sale purchase debt. फिर सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री, ओके? अच्छा, डॉट्स नहीं दिया हमने, जरा डॉट्स दे दो. ट्यूशन फीस करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग है, पुट अ डॉट ऑन ट्यूशन फीस. एडमिशन फीस पे डाला हुआ है. आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स पे एक डॉट, सैलरी पे एक डॉट. बुक्स पे कितना डॉट आएगा? हाउ मेनी डॉट्स ऑन बुक्स? टू डॉट्स ऑन बुक्स, बिकॉज लास्ट ईयर का है. लेके आओ, परचेज भी है, डेप्री भी है, ठीक है? तो फर्नीचर भी वैसा ही है, आई थिंक लास्ट ईयर से करंट ईयर आ रहा है. फर्नीचर भी परचेज भी है, डेप्री भी है, टू डॉट्स. बुक्स एंड फर्नीचर टू डॉट्स. हिडन एडजस्टमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे 9% दिया हुआ है. सब लोग नीचे देखना एकदम ध्यान से. उसका हिडन एडजस्टमेंट का नोट करना है. 9% बैंक डिपॉजिट्स, ओके? बैंक डिपॉजिट्स आर इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट. हिडन एडजस्टमेंट है, कैलकुलेट, चेक एंड कंपेयर. मेक अ वर्किंग नोट फॉर दैट. सो उसका आपको इंटरेस्ट पे एक डॉट आएगा. और बैंक डिपॉजिट्स पे ये साल खरीदा है क्या? बैंक डिपॉजिट्स नहीं है, तो खाली नीचे वाले बैंक डिपॉजिट पे एक डॉट, रिसीवेबल का. दैट्स इट. डॉट्स देख लो ध्यान से. करंट ईयर ट्यूशन फीस 1 डॉट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1 डॉट, बुक्स 2 डॉट्स, फर्नीचर 2 डॉट्स, एंड नीचे बैंक डिपॉजिट 1 डॉट, हिडन एडजस्टमेंट 9%. कैलकुलेट, चेक एंड कंपेयर. Fifteen minutes. Time yourself.
Getting it, all of you? Hidden adjustment note banana. Make that on the screen. Make the note for hidden adjustment as well. सर वो एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाना है इंटरेस्ट? कौन एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम हाँ में. हाँ, इनकम इनकम। इनकम में बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 25,500 इनर कॉलम ऊपर जो दिया है वो रिसीव्ड है, प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,500 आउटर कॉलम 2,700 27,000. 25,500 प्लस रिसीवेबल 1,500 आउटर कॉलम 27 एंड एसेट्स में बैंक डिपॉजिट में ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,500. 1,500 इज ओनली रिसीवेबल. 25,500 तो मिल चुका है. फाइनल अकाउंट्स में करते थे ना सेम वे, ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स. Saturday NPO test. Paper is gonna be lengthy. Board weightage is 12 marks. I'll be putting 15 mark ka 2 questions. One hour timing. 2 questions, 15 marks each. Next Saturday objective test. Today we'll be doing objectives also of NPO. 100 mark objective test next Saturday. This next Saturday, 10th. सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बैंक डिपॉजिट में सिर्फ 3 लाख ही दिखेगा. Yes, 3 lakh. ये दिया हुआ है ना नीचे जो वही दिखेगा लास्ट ईयर एसेट. करंट ईयर में वही 3 लाख कैरी फॉरवर्ड होएगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट, इन्वेस्टमेंट है एंड उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,500.
सर अगर ये सब में पेमेंट साइट पे बाय प्राइस या कुछ ऐसा दिया होता एक्सपेंसेस ऑन प्राइस, तो फिर हम लोग तो फंड से माइनस करते थे फंड ना। में से माइनस हो जाता है, यस, लाइबिलिटी साइड फंड में से माइनस। करेक्ट। Finished? Posting should be done. Any doubts in any of the entries? हो गया? Tallying. Verify the answer. Don't copy. Copying is just simply waste of time, I told you. Fooling your own self if you are copying. ओपनिंग बैलेंस शीट भी होगा कहीं पे नीचे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट भी है। Verify the solution.
चलो डन. पढ़े आगे. Getting the answer, tallying, deficit 239,000, capital fund 302, sorry 33 lakh 2,000. Tally is on 57,000, 33 lakh 57,000. Chalo, next sum. Come to problem number 17. I have not done 17th, right? Please check. I have done 17th. Yes, sir. हो गया? Sure. Please check once. 20. Okay. ठीक है. Then come to ये भी हो गया. 19th one. 19th one, I think 19th one was given in the last lecture, right? 19th is also done. Sushma Memorial. 19 बाकी. Okay. 19 का similar one we have done that. 19th sum. 19 sum mark कर लो फटाफट. पेमेंट साइड से स्टार्ट करना है. फर्नीचर इज एसेट, medicines are expenditure. Okay. Honorarium to doctors are expense, salary to staff is expense, general expense is expense, what are surgical instruments? Surgical instruments are assets. Deposits are also asset. 31st March 2020. See, when have you bought the fixed deposit? 31st March 2020 is the last date. Okay. So no interest if there is any on these deposits. Balance carried down is current year asset. Opening balance is last year asset. Subscription एक ही दिया है तो किधर जाएगा? Only single subscription is given, so that is income. Entrance fees revenue मतलब income. Live membership fees revenue मतलब income. Sale of old newspaper income. Donation for building fund, what are we supposed to do? Donation for building fund is Add to building fund. liability में add to building fund. In this sum you have building fund, so add to building fund in the liability part. नहीं होता तो भी अलग से liability में ही दिखाना था. Outstanding subscription दो है, last year outstanding, current year outstanding. क्या करना है last year outstanding? What will you do last year outstanding? Single subscription ही दिया है. What will be the two effect of last year outstanding subscription, guys? Minus from last year asset. बराबर है? Minus from subscription and last year asset. What about current year outstanding? Current year outstanding, add an to asset. subscription Add an asset. and Current current year year asset. Subscription pre-received, last year का pre-received. क्या करना है last year का pre-received? Last year का pre-received subscription, what are we supposed to do? Add to Add to subscription. and last year liability. Add to subscription and last year liability. What about current year pre-received? Current year pre-received would Less be from less.
less from subscription and current year liability. Will you subtract it? Will you subtract it? Yes, because year wise नहीं दिया तो definitely minus करना ही आपको. Yes, बराबर है. Building last year भी 13 लाख था, ये साल भी 13 लाख है. तो last year asset से bring it to current year asset. बराबर है. Last year asset से bring it to current year asset as it is. फिर sale purchase depreciation if there is any. Investment last year भी 2 लाख का था, current year भी 2 लाख का है, तो last year asset से bring it to current year asset. Capital fund last year का capital fund दिया हुआ है. Is there any need to prepare opening balance sheet? No need. Okay, capital fund current year में क्यों question mark दिया है? Current year में हम लोग ढूंढेंगे ना सब donation, life membership fees कुछ capitalize करना है, surplus वगैरह add वैड करके मिलेगा अपने को. That's why they have given you question mark. And building fund last year का liability. Building fund is last year का liability. वहां से जाएगा current year liability, उसमें donation वोनेशन add करके outer column. Okay, तो last year liability से current year आके फिर add. Got these items? Dots डाल देना. Subscription, how many dots? How many dots on subscriptions? 4. 2, 3, 4. 4 dots on subscriptions. Building पे कुछ नहीं है. Investment पे भी कुछ नहीं है. Capital fund पे भी कुछ नहीं है. Building fund पे एक dot, क्योंकि donation add करना है. बस start करो. 10 minutes, 8:25 wind up. All sum. Tell me, you don't understand anything. खुद से आना चाहिए. जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली दोज हु आर डूइंग सीए, हमारा सीए में ये बर्डन कम हो रहा है. 15 mark weightage you are having NPO का in CA foundation, either final accounts और NPA, तो में से एक आता ही है. सर इन लोगों ने ये रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन है उसमें अमाउंट 1,03,000 दिखा है और वर्किंग नोट में 1,03,000 दिखा है, तो कौन सा दिखाना है? हाँ 1,03,000 1,03,000 ही है. $1,03,000 ही है सब्सक्रिप्शन. एक मिनट. 1,07,000. एक मिनट. 1,00,000 एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है. यस, रिसीट टैली नहीं हो रहा है ऊपर. 7 + 5 12. 1,03,300 कर दो उसको.
ऊपर क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है. 1,03,300 टोटल टैली नहीं हो रहा है तो रिसीट का सम टैली नहीं होगा तुम्हारा. कभी भी ऐसा इश्यू हो ना, रिसीट पेमेंट का टोटल चेक कर लेने का. सिंपल. अगर रिसीट पेमेंट टैली नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो कभी सम टैली नहीं होगा. तो जो टैली होने वाला अमाउंट है वही करेक्ट होगा हमेशा. 1,03,300. 1,03,300 is the amount. Subscription. 1,03,300. सर उधर वर्किंग नोट में वो लोग ने 1,03,000 लिया है. 1 lakh. वर्किंग नोट में 1,03,000 दिया है, वो लोग ने लिया है. और 1,300 ही आया था, वरना टैली नहीं हो रहा है. 1,03,300. 1,03,000 से टैली नहीं हो रहा है. 15. फाइनल अमाउंट 1,03,300. 17. एक मिनट. हाँ, 170, 135, 285, 500. हाँ, 1,03,000. 1,03,000. 3,000 और कम है. 1,03,000 है. Subscription in the question is not 1,03,000. It is 1,03,000. See, I am doing a correction. सर पर This टैली में is तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, टैली तो हो ही जाएगा. कैसा होएगा 3,300 बॉस? लेंगे तो भी कैसा होएगा? नहीं होएगा. होएगा. 1,03,000. क्वेश्चन वाला अमाउंट बोल रहा हूँ मैं. क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये वाला. सम में बोल रहे हो. हाँ, यही सम वाला. जो सम वाला यू आर सेइंग 1,03,300 ना. हाँ, मतलब हम सम में लेके करेंगे तो होना चाहिए ना. नहीं, कैसा थर्ड होगा? प्लेस अलग आएगा ना, या कुछ तो अलग आएगा. अरे भाई, रिसीट पेमेंट वो लोग ने रेडी किया हुआ है ना, तो रिसीट पेमेंट टैलीड चाहिए ना. तो रिसीट पेमेंट टैली होने के लिए 1,03,000 ही फिट होएगा वो. नहीं तो तेरा 3,000 का डिफरेंस आएगा सम में. अगर तो 1,03,300 ले रहा है तो यू विल हैव टू चेंज द कैश बैलेंस. 8,500 करना पड़ेगा, फिर सम टैली होगा. क्लोजिंग कैश विल आल्सो चेंज. क्वेश्चन में करेक्शन है. 1,03,000 है. 1,03,000. सब्सक्रिप्शन इज 1,03,000. 1,00,300. उस पे 4 एडजस्टमेंट्स करना. 4 एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट, करंट ईयर प्री रिसीव्ड सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड ऐड, एंड फिर आउटर कॉल. फोर एडजस्टमेंट्स. Sorry.
सर अगर एग्जाम में हमको ऐसे रॉन्ग अमाउंट दिया क्वेश्चन में, तो फिर हमारा सम रॉन्ग हो के राइट हो मार्क्स फुल मिलेगा ना? मार्क्स फुल मिलेगा। लेकिन आज तक ऐसा एक आध बार ही हुआ है बोर्ड्स में। कभी भी क्वेश्चन में चेक कर लेने का, in case of final accounts your trial balance should tally, in case of admission, retirement, death, dissolution, opening question balance sheet should tally, in case of NPO receipt payment should tally। ये नहीं हो रहे हैं तो कभी आंसर जिंदगी में टैली नहीं होता। लेकिन सर अभी इतना टाइम कम है तो ये भी हम लोग चेक करने बैठे थे। मैं बोल क्या रहा हूँ, बोर्ड में एक ही बार हुआ है, जनरली मिस्टेक होता नहीं है ऐसा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में बहुत मिस्टेक्स है, बोर्ड पेपर में नहीं मिलने वाला है। चलो डन। यशवी का हो गया टैलीड। चेक करो, इसका भी है नीचे सोल्यूशन। सर वो आप नोट्स लिखवाते हो ना सब अलग अलग, वो कौन कौन से केसेस में आता है वो एक बार बोलो ना। नोट्स स्टेटमेंट वाले नोट्स कि वर्किंग नोट कैलकुलेशन का तो दिखाना है। स्टेटमेंट वाला जब डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इनके बारे में कुछ नहीं दिया है, you write a note that we have donation we have assumed as income, admission fees as income, entrance fees we have capitalized। वो मैंने लास्ट पेज पे दिया ना पूरा लिस्ट। आइटम्स के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो यू राइट अ नोट। ओके, we have assumed that it is income, we have assumed that it is capitalized। okay, then objectives फटाफट देख लो, try to answer it all of you। I want you all to answer, all of you, page 111। not for profit concern renders dash services public at large। social services बराबर है। not for profit concerns provides social services to the public at large। donation for scholarship fund is capital receipt, revenue receipt, capital expenditure, revenue expenditure। Capital receipt। capital receipt, what do you mean by capital receipt? Ones which you show in balance sheet, non-recurring ones। revenue receipt under income, expenditure, capital expenditure, assets। got the first one and the second one? all of you got this? capital receipt is long term, बता था, non-recurring। revenue receipt is short term, हर साल का recurring। income and expenditure account is a dash type of account, Nominal. nominal। outstanding subscription at the end of the account year represents liability। ए भाई अरे जाओ asset. जाओ गांव भागो चलो। asset, outstanding subscription at the end of the year is asset, receivable it is। subscription received in advance during the accounting year is liability। excess of income over expenditure is termed as Surplus. not for profit concern dash account instead of P&L account, income and expenditure। closing balance of receipt and payment account usually represents cash and bank balance।
Not for profit concerns are also called as Service. Service. organizations. Expenditure on purchase of a building is a dash expenditure. Capital expenditure. Capital expenditure. Fixed assets, I told you, assets matlab capital expenditure. Expense of revenue. One word, very important. The form of organization providing services to its society डाउट only. है Yes. सर उन लोग ने रेवेन्यू और रिकरिंग को अलग क्यों दिखाया है? वो तो ऑप्शन में दिया हुआ है ना. मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, no difference. Revenue recurring are same. Revenue recurring both are same. Both are wrong. So that's why they have filled up that option just by putting another name. Got it? Capital and long term या fixed asset या asset, they are all same. The form of organization providing services to the society only, NPO. not profit concern. An account which is prepared by not profit concern instead of P&L account. Income expenditure. Income and expenditure account. Donation received for specific purpose. Endowment fund. नहीं, वो फंड दिया है ना, तो स्पेसिफिक यू राइट एंडाउमेंट फंड. स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ डोनेशन दिया है. इट इज स्पेसिफिक डोनेशन. दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन. अगर फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस है, फंड क्रिएटेड, तो यू राइट एंडाउमेंट फंड. ओके, फंड क्रिएटेड दिया, बोथ आर सेम ओनली. डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन बोलो या एंडाउमेंट फंड बोलो, बट खाली डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, बेटर राइट स्पेसिफिक डोनेशन. And fund received for specific purpose है तो right endowment fund. Okay, meaning wise both are similar. खाली आंसर में थोड़ा ये ध्यान रखना. Donation for specific purpose is specific donation and fund received for specific purpose is endowment fund. The receipts which are not recurring in nature, Capital receipt. Capital. not recurring, are capital receipt. Recurring are revenue. An account which records only revenue items in case of not-for-profit concern. Income and expenditure. Income and expenditure, very good. Account which records only cash transactions for not-for-profit concerns, receipt and payment account. The income which is earned during the year but not received during the year. Receivable. Receivable. Outstanding income या income receivable. Income receivable. Credit balance of income and expenditure account is Surplus. surplus. Profit मत देना यहाँ पे. Excess of total assets over total liabilities of a profit का. Total assets over total liabilities. उसको क्या बोलते हैं? Capital fund. Capital fund बोलते हैं. All such receipts which are non-recurring in nature and are not forming a part of regular flow of income. Capital receipt. Capital receipt. receipt. Okay, दोनों का सेम ही है for 10. Capital receipt, long term receipt, non-recurring. Yes, yes. सर ये थर्ड का पीछे कैपिटल रिसीट भी दिया है. थर्ड का? हाँ थर्ड का कैसा कैपिटल रिसीट है? दिया है. थर्ड का स्पेसिफिक डोनेशन है. फोर्थ का कैपिटल रिसीट आएगा. फोर्थ का क्या दिया है? फोर्थ का कैपिटल रिसीट्स दिया है. थर्ड का भी कैपिटल रिसीट दिया है. सर थर्ड का ऑप्शन में दिया है. थर्ड का दिया है? हाँ, स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीट्स. ऑप्शन है सर. स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीट. तो बेटर आंसर इज दिस. कैपिटल रिसीट वो अभी खाली डोनेशन के दिया है तो स्पेसिफिक डोनेशन बेटर यू राइट ना. स्पेसिफिक डोनेशन इज अ बेटर आंसर. कैपिटल रिसीट थोड़ा जनरल हो जाएगा. बेटर आंसर इज स्पेसिफिक डोनेशन. ओके. Not for profit concerns do not have profit motive. True. True. True or false? Come on. Not for profit concerns do not have profit motive. That is true. What is their motive? Service. Social service. Charitable institutions prepare P&L account at the end of every financial year. False. What do they prepare? Income and expenditure. There is no difference between receipt payment account and income and expenditure False. account. False. अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन छाप के ही लिख देते. बराबर है ना. तो रिसीट पेमेंट पूरा कैश है, इनकम एक्सपेंडिचर पूरा ये है अपना बेसिस है. उधर लॉन्ग टर्म का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. इधर हम लोग खाली
करंट ईयर इनकम और एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर आइटम दिखाते हैं. उधर लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर सब भेलपुरी मिक्सअप है. इधर खाली करंट ईयर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. So many differences. Income and expenditure account represents either surplus or deficit. True. 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 बताया था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग से कोई सम में दिखता है, रिमेम्बर? उसके अंदर सरप्लस और डेफिसिट पड़ा हुआ है अभी तक के सालों का. Receipt and payment account do not have any opening balance. False. False. They have because they are cash bank account, cash and bank balance. Not for profit concern do not prepare balance sheet. False. False. They do prepare. Purchase of sports equipment is a capital expenditure. True. Purchase of sports equipment is a capital expenditure. Asset है वो. Income and expenditure account is a real account. False. 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 Income expenditure is nominal. Nominal. Receipt and payment. I think ये एक आध दो आंसर में किधर गड़बड़ है, पीछे चेक कर लेना. 10th में या 8th में या 9th में किधर तो एक आध दो क्वेश्चन गड़बड़ है, देख लेना जरा आंसर में. ट्रू और फॉल्स के पीछे रॉन्ग दिए है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर. False. Receipt and payment account contains only the transaction relating to the current year. False. उसमें तो भेलपुरी पड़ा हुआ है, रोकड़ा जो आया वो लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जो पैसा आया वो. Then excess of assets over liabilities is called capital fund. True. Excess of assets over liabilities is called capital fund. All of you got that? Sir, Yeah. sir 7th वाले में ट्रू नहीं आ सकता, अरे फॉल्स नहीं आ सकता. नहीं. Purchase of sports equipment is a capital expenditure. Is it expense or asset? सर हम लोग सब में तो करते हैं ना कि परचेज दिया है तो वो Not for sports equipment, boss. For what do we do that? It's material. मटेरियल. Sports material या cricket goods या sports goods, goods या material दिया है ना, तो दोनों नेचर अज्यूम करता है वो, कभी एसेट कभी एक्सपेंस. बट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, थंब रूल याद रखना हमेशा. इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्रिकेट इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, बिग आइटम्स, always asset, always asset, always asset. Okay, they are capital expenditure. तो पीछे रॉन्ग दिया, आई थिंक वही एक आध दो पीछे किधर रॉन्ग है. 8 और 9 में भी किधर Just रॉन्ग. 8th वाला रॉन्ग दिया वो लोग ने. 8th वाला वो लोग ने आई थिंक ट्रू दिया. वही एक आध दो रॉन्ग है, वही मैं बोल रहा हूँ. ये जो लिखा है ना ये बराबर है. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज एसेट, long term asset, instrument equipment all, and income and expenditure account is real account, that is false, it is nominal. Okay, income and expenditure is nominal like P&L. it is surplus deficit बंद होके चला जाता है ना कैपिटल फंड में, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है नेक्स्ट ईयर. रिसीट पेमेंट अकाउंट कौन सा टाइप है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट? Real, that is cash account. Phillips, not-for-profit organization is never engaged in dash activities. Trading activity. Trading या profit making activities. Trading या profit making activities. Not-for-profit organization is called dash organization. Service. Service organization. Non-trading organization. Service या non-trading organization. Receipt and payment account falls under the category of dash account. याद रखना dash account है वो. Okay. Bank is personal, cash is real, but cash and bank together, if they give you receipt and payment, you assume it is real. It is a combination of both. So receipt and payment is a real account. Okay. उसमें दोनों है, cash भी है, कभी bank भी होता है. तो cash is real, bank is personal because institution. But if they are both given together, receipt payment is always real. Okay. Asset, cash account assume करने का. In receipt and payment account, the summary of dash transactions are recorded. Cash transaction. Income and expenditure account is similar to the dash account of a trading. Profit and loss. Credit side of receipt payment account shows cash. Deficit. Payments. Payment. Credit side पूछा है. क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट में पेमेंट दिखता है ना, डेबिट साइड पे रिसीट दिखता है.
Income and expenditure account is a dash account. Nominal. Nominal account. Nominal. University prepares dash account instead Income of and P&L account. expenditure. Income and expenditure account. Subscription received from members is considered as dash Revenue receipt. Very good. Revenue receipt. Revenue receipt. हर साल का recurring है. The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the current year. Current year. Is this clear? What do you mean by not for profit concerns? Never engage in trading activities. Organization with service motive basically. Organization with service motive. ये एक्चुअली है ना, ये लोग ने थोड़ा रॉन्ग कंसेप्ट दिया है यहाँ पे. ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन पे. कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग भी करते हैं. से फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, बड़ी सी कॉलेज है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद रही है, बुक्स खरीद रही है, जर्नल्स खरीद रही है, ठीक है. तो उसमें से काफी कुछ जर्नल अपने टीचर्स को देती है यूज करने के लिए, बुक्स अपने टीचर्स को देती है यूज करने के लिए. बट कोई ऐसे जर्नल जो आप कॉलेज से खरीदते भी हो, आपने खरीदे भी होंगे अगर आपको पता होगा तो. कभी कभी कॉलेज बोल बाय दिस 50 रुपी जर्नल, बाय दिस 50 रुपी हैंडबुक, बाय दिस 50 रुपी प्रोजेक्ट बुक, buy this 50 rupee textbook from the college. You might have heard also and you might have purchased also, remember? So college is an NPO, but they are trading. Though their motto is not profit, they'll sell you at cost to cost. But this is a type of trade happening. They are buying the in bulk quantities and they are selling it to the students who are their customers. So they may get involved in trading activities. Actually, थोड़ा conceptually wrong है. बट अभी हिया है इधर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, तो ठीक है हम लोग को लिखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो ट्रेड एक्टिविटीज में हो सकता है, रेयरली होता है बट हो सकता है, एनजीओस कैन बी अ पार्ट, कैन बी इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटी समटाइम्स. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द केस, इसीलिए उसका नाम है एनटीओ या एनपीओ, नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट. 99% नहीं होता, कभी कभार हो सकता है. बट प्रॉफिट मोटिव तो कभी कभी नहीं हो सकता. प्रॉफिट मोटिव हो गया तो कहानी खत्म हो गई उधर, वो एनपीओ नहीं है वो. इज इट क्लियर? प्रॉफिट मोटिव हो गया तो वो नॉर्मल बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग कंसर्न हो गया. तो ये याद रखना को कि प्रॉफिट कंसर्न, प्रॉफिट मोटिव या सर्विस मोटिव होता है. प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उसका, सर्विस मोटिव होता है. दैट इज द अल्टीमेट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन एन एनपीओ एंड अ ट्रेडिंग कंसर्न. So what I mean by a non-profit organization पूछा है, तो organization are having service motive or which do not have profit motive, and आगे ancillary लिख सकते हो, and who are not involved in trading activities. But main reason लिखना है service या not for profit. Is it clear? Remember that. Which organizations prepare income and expenditure accounts? NPO. What is receipt and payment account? What is receipt and payment account? Summary of cash transaction during. Summary of cash and bank account. Very good. Summary of cash and bank transactions during the year. Why income and expenditure account is prepared? Calculate what? Deficit and surplus. Surplus or deficit in case of NPOs. What is a capital fund? Excess of Assets over liabilities. assets over liability for NPO. For NPO. What is subscription? Revenue received from the members of the NPO. Perfect. Recurring or revenue received from members of NPO. Perfect. What is legacies? Donation given After death. as per the will after the death of the member. What is surplus? Excess of income over expenditure for an NPO. What do you mean by non-recurring expenses? Capital expenditure with long-term benefits. With long-term benefit. Okay. तो ही मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होगा. छोटा छोटा इनकम एक्सपेंडिचर, बड़ा बड़ा एसेट लायबिलिटी. To which account surplus or deficit is transferred?
कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, ठीक है। चलो फिलअप कर लो फटाफट। इनकम 10,000 है, एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क, डेफिसिट हो गया 5, 15,000। 8,000 का इनकम है, डेफिसिट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क, सरप्लस ऑफ 4, 4,000। इनकम क्वेश्चन मार्क, एक्सपेंडिचर 15, सरप्लस ऑफ 8, 23. 23. क्या है, केजी का मैच दे दिया है। 7,500 इज इनकम, 9,000 इज एक्सपेंडिचर, Deficit 1,500 deficit. 1500 का डेफिसिट है। 15,000 का इनकम, 11,300 का एक्सपेंडिचर, 3,700 Surplus. का प्लस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये ध्यान से देखना। 1,100 टोटल है। ओके, प्रीपेड 100 रुपया है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1,000. ये सैलरी पे ऊपर देखो, पेड दिया हुआ है, पेड दिया हुआ है 1,100, प्रीपेड 100 रुपया, तो एक्सपेंडिचर हुआ 1,000। समझ में आई बात? 2,700 पे किया, उसमें से प्रीपेड मालूम नहीं है, एक्सपेंडिचर 2,000 है, 700. 700 रुपया प्रीपेड हो गया। 8,250 पेड है, 6,650 इज द आंसर एक्सपेंडिचर, सो 1,600 इज प्रीपेड। 1,200 रुपया पे किया है, आउटस्टैंडिंग 200 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1400. 400। एक्सपेंडिचर पेड नहीं पता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग 600 है और एक्सपेंडिचर 5,100 है, तो पेड कितना है? 4,500। 4,500 प्लस 600 करोगे तो 5,100 मिलेगा। 1,800 रुपया पेड है, क्वेश्चन मार्क है, आउटस्टैंडिंग 400. 400. रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो वो लेगेसी का बोलो ना वापस। donation given as per the will of the member after his death to the organization. Donation given as per the will of the member after death. As per the will of the member after death is called legacy. अभी रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया, रिसीव्ड रोकड़ा मिला है, 1,300 मिला है, उसमें से 200 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इनकम कितना होगा? 1,100। अभी रिसीव्ड इन एडवांस 400 है, इनकम 1,400 है, तो टोटल रिसीव्ड कितना 1,800. होगा? 1,800 होगा ना, उसमें से 400 हटाओगे तो 1,400 इनकम है। 2,650 रिसीव्ड है, रिसीव्ड इन एडवांस पता नहीं है, इनकम 2,000 है, तो कितना हो गया? प्री रिसीव्ड 650 हो गया। अभी रिसीव्ड नहीं पता है, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इज 290 और इनकम हो गई 90, तो रिसीव्ड 2900. 2,900 में 290 ऐड करोगे तब जाके मिलेगा ना 3,190। 700 में कितना ऐड करोगे अक्रूड, तो 2,150 मिलेगा, तो 450 आउटस्टैंडिंग। एंड 2,600 रिसीव्ड है, उसमें आउटस्टैंडिंग है 500, तो कितना हो जाएगा इनकम ये साल का? 310. ये टेबल समझा दोनों? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? अभी ये कैलकुलेट करो, चलो फटाफट, रफ नोट में किधर, फटाफट ऑल ऑफ यू कैलकुलेट 1 2 3 4 5, कैलकुलेट क्विकली, 5 मिनट्स, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट, ऑल 5 रफ में किधर भी फटाफट कैलकुलेट कर लो, आंसर्स ढूंढना है खाली, ऑब्जेक्टिव्स ही है वो, आपको आंसर पे अराइव करना है।
check the answers. ठीक है, मिल रहा है सबको? कंफर्टेबल? Find the odd one. Trading account, P&L account, receipt payment account, balance sheet. receipt payment. बोलो सब लोग. Trading, P&L, receipt payment, balance sheet. Payment. Why receipt? Why receipt payment? क्योंकि It वही is not the part of final accounts. Or not a part of? Not part of trading concern. हाँ, trading concern में सिंपली कैश बैंक अकाउंट होता है, बाकी सब ट्रेडिंग कंसर्न के थे, ये नॉन ट्रेडिंग का था. मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी. क्यों सैलरी? ये एक्सपेंस है, बाकी एसेट है. सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर एंड Stationery. वाई स्टेशनरी? Other are income. अदर्स आर इनकम, ये एक्सपेंस है. अदर रिसीट और ये पेमेंट है. सैलरी, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री सबको मालूम है, धीरूभाई अंबानी पैसा कमाते हैं. प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, बाकी ट्रेडिंग बिजनेस है, बाकी ये सब नॉन ट्रेडिंग है. सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल नेट फंड. प्रॉफिट. सर आपने जो Surplus फर्स्ट वन deficit. का क्या रीजन दिया? Receipt payment is the part of non-profit organization, बाकी तीनों part of trading profit organization. सर तो बैलेंस शीट भी तो बनाते हैं ना एनपीओ में. हाँ, तो फिर हाँ मतलब अच्छा बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसा बोल. बट रिसीट पेमेंट ये खाली इसी का है ना, अपना एनपीओ से ही रिलेटेड है ना. बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल बाकी बिजनेस में भी बनाते हैं. रिसीट पेमेंट खाली एनपीओ में बनाते हैं. बस सर दूसरे तीन अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब एक स्टेटमेंट है, ऐसा भी हो सकता है ना रीजन. ट्रेडिंग, पीएनएल, रिसीट पेमेंट इज एन अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. हो सकता है, वैसा भी कर सकते हो, बराबर है. बट ये ज्यादा ठीक लग रहा है सर फाइनल अकाउंट्स के उसमें से देखे तो भी आ सकता है ना कि रिसीट और पेमेंट नहीं, ये तीनों अकाउंट हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट. दैट्स व्हाट. तो ये रीजन भी हो सकता है, पर वो तो फाइनल अकाउंट्स का हो गया. फिर ही रीजन अप्रोप्रिएट है कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट के साथ रिसीट पेमेंट दिया है ना, मतलब ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग. वो रीजन भी वैलिड है जो किसी ने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, रिसीट पेमेंट आर ऑल 3 अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट. ये भी वैलिड रीजन है. बट थोड़ा बेटर रीजन यहाँ पे जो लॉजिकली पहला सोच के आंसर आता है, ब्रॉडली सोच के करना पड़ेगा थोड़ा. और ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट नॉर्मल बिजनेस में आता है, ट्रेडिंग बिजनेस में. रिसीट पेमेंट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एनपीओ, और अपन एनपीओ कर भी रहे हैं ना, तो जो वो लोग ने रिसीट पेमेंट दिया बोर्ड में थोड़ी देंगे वो लोग. हाँ, तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आने का चांस कम है जिधर ऐसा वेग आ जाए तुमको मिक्सचर. ओके, अगर बोर्ड्स में भी आए तो बेटर इट इज इफ यू राइट रिसीट एंड पेमेंट ओनली. ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट एक साथ जाता ही है ना. ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैपिटल, करंट, ये अपन नॉर्मल बिजनेस का फाइनल अकाउंट में बनाते हैं. एंड ओनली रिसीट पेमेंट इज ओनली फॉर एनपीओ, so stick that only. Okay, सर उसका एक बार रीजन बोलो ना फिर से. receipt and payment account is prepared only for NPOs. बाकी तीनों are prepared for trading concerns and for NPO, maybe balance sheet दोनों के लिए बनता है. But receipt payment is prepared only for non-profit organization. Business, trading, profit organization नहीं बनाते. समझा? रिसीट एंड पेमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी वो तो क्लियर है. सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी भी क्लियर है. रिलायंस इंडस्ट्री. सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल फंड. सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल फंड. नेट प्रॉफिट.
कैपिटल फंड कैपिटल फंड भी हो सकता है ना वापस। लेकिन सर बाकी सब हम लोग फाइनल अकाउंट्स में फाइंड करते हैं, ये एनपीओ का है ना। अरे बराबर है, इधर भी एक्चुअली गड़बड़ है। ठीक सकते हो, दोनों भी आ सकता है एक्चुअली, नेट प्रॉफिट और कैपिटल फंड। नेट प्रॉफिट डाल दो, क्या दिया है पीछे? नेट प्रॉफिट। ओके, अदरवाइज क्या है, दोनों क्या है, रेवेन्यू का रिजल्ट है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कैपिटल फंड जमा हुआ कैपिटल। अगेन इधर एनपीओ बेस है, तो इधर एनपीओ के बेसिस पे जैसे ऊपर हमने सोचा इधर सेम सोचो। सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड बिलोंग्स ओनली टू एनपीओ, नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द फाइनल अकाउंट पार्ट, नॉर्मल ट्रेडिंग बेस। ओके, there is one small sum, want you all to do it, that is some number I tell you 14, 12. धनंजय लाइब्रेरी किया है क्या हमने? 12 पेज नंबर 122 धनंजय लाइब्रेरी। हाँ बराबर है, ये हो चुका है। फिर कौन सा बाकी था? केबीपी न्यू इंग्लिश, एक मिनट ऊपर था। 14 नहीं उसमें था, एक मिनट, ये वाला बाकी था आई थिंक। हाँ दिस वन पेज नंबर 93 वाला, ये हो गया? नहीं, एक मिनट। चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड नहीं हुआ है, ये वाला था 12th सम। सॉल्व दिस आउट। 12th सम पेमेंट साइड मार्क करते जाओ। सर इंश्योर, लाइक सॉरी एसके सोमैया, ठीक है ये कर लेना 12th, और फिर होमवर्क आ जाएगा। 12th सम इंश्योरेंस, पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस, दैट इज एक्सपेंडिचर, प्लीज मार्क फास्ट। इंश्योरेंस is expenditure, printing stationery expense, books are assets, computers are assets, traveling expense are expense, furniture is asset, closing balance is current year asset, cash balance current year asset, opening balance is last year asset, subscription फिलहाल इसको इग्नोर मारो, खाली एक सब्सक्रिप्शन 72,000, where you will put that 72,000? income, subscription will go to income. Sale of machinery, ये 20,000 कहीं पे भी रिकॉर्ड करना है सेल ऑफ मशीनरी में? नो 20,000 इग्नोर करना, दैट्स योर सेल वैल्यू। ओके, इग्नोर दैट। बुक वैल्यू कितना है देखो 25 है, तो मशीन में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है अपने को? 25 एंड विच इंडिकेट्स 25 का हमने 20 में सेल किया हुआ है, 5,000 क्या इंडिकेट करता है? 5,000 का लॉस है, बराबर। डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो ऐड टू बिल्डिंग फंड या फिर सेपरेटली दिखाओ। एंड एडमिशन फीस रेवेन्यू है, तो दैट इज इनकम। कमिंग टू द एडजस्टमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1st April 17, व्हाट इज 1st April 17? करंट ईयर और लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस। Outstanding subscription are 10,000. This is very important. All of you pay attention. Outstanding subscription last year का 10 था, 10। अभी ऊपर चेक करो, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, including 8,000 for the year 16-17. What does this indicate? 2,000 still in arrears. Did you all understand? 10,000 मिलना बाकी था लास्ट ईयर, नीचे दिया हुआ है, उसमें से 8,000 ही मिला है, मतलब 2,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो हाउ विल यू शो इट? लास्ट ईयर एसेट में कितना दिखाओगे आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर एसेट में कितना जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर में 10, लास्ट ईयर एसेट में इट विल बी 10, और सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है? करना है 80 will you subtract any? Yes, will you 8,000 you will subtract from subscription. Did you all get this? Why will we subtract? Why will we subtract? Because the 8,000 is included inside 72,000.
कैन यू सी दैट? अगर वो अलग अलग दिया होता ना मेरे को 64 और 8, तो मैं माइनस नहीं करता. 72 के अंदर पड़ा हुआ है तो 8 माइनस करो, और बाकी का 2000 किधर जाएगा? करंट ईयर एसेट. करंट ईयर एसेट. ओके, करंट ईयर एसेट. ये एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ड्रग्स एडजस्टमेंट है जो तुमको होमवर्क में था लास्ट सम. ड्रग्स वाला जो एडजस्टमेंट 50 में से 40 मिला, पे किया है, 10 अभी भी पे करना बाकी है. सेम वे ओवर हियर. ओके, 10 में से 8 मिला है, 2 अभी भी मिलना बाकी है. समझा ये सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट सबको? हेलो. देन मशीनरी 50,000. क्या करोगे? 50,000 कहां से टपक रही है ये मशीन? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. बिल्डिंग फंड कहां से टपकेगा? ये बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. इन्वेस्टमेंट भी लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. देन सब लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी, ये लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट, ये भी लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. Depreciate machinery by 2,500, that is less from asset and expenditure. Donation for building fund, add to building fund, वो information है. Add to building fund. Outstanding subscription for the current year is 6,000. इसका क्या करना है? Current year outstanding. ऐड करना है. Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. मुझे बताओ, how many dots on subscriptions? 2 dots on current year, 2 dot. माइनस भी करना है और ऐड भी करना है. बिल्डिंग फंड डोनेशन पे 1 डॉट, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है. इन्वेस्टमेंट पे कुछ नहीं है, मशीनरी पे भी कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन है. ओके, मशीनरी 1 डॉट, डेप्रिसिएशन है, बस करो. 2 dots on subscription, 1 on donation, 1 on machinery. Simple problem, 10 minutes, wind up 9-10. Yes. तो सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 दिया है. वो एक्चुअली मिस्टेक है, वो 6 ही है. मेक इट 6,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, मेक इट 6,000. ओके, क्वेश्चन में 4 लिखा है, मेक इट 6. वो एज ऑन वाला पार्ट कर लिया. वो एज ऑन वाला एक्चुअली फॉलो नहीं हो रहा है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 6 करना है. 10 का 6 नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन बराबर ही है. क्वेश्चन में कोई चेंज मत करो, आंसर में मिस्टेक है. आंसर में आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 4 लिया हुआ है. यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये 6 है. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इज 6. आउटस्टैंडिंग 6,000. अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिया होता ना तो वी वुड हैव टेकन 4, बट वो एज ऑन है ही नहीं. एज ऑन का मतलब क्या होता है वो, लेकिन है नहीं तुमको अभी, तो याद रखना वो निकल गया है अभी, इधर बाय मिस्टेक पुराने मेथड से सॉल्व किया हुआ है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन का मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर का 2 और ये साल का 4, ऐसे मिला के 6, तो ये साल का 4 रिसीवेबल, ऐसा हो जाता है. बट वो है नहीं. करंट का 6 पूरा आउटस्टैंडिंग, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, डू दैट वे ओनली. करंट 6,000 फुल आउटस्टैंडिंग. मतलब सर उन्होंने वो 2,000 इसमें इंक्लूड कर दिया ना 6,000. हाँ, वो एज ऑन था, वो पहले फॉलो करते थे, फिर कंट्रोवर्सी हुआ था, तो वापस निकल दिया. किधर भी नहीं है, सीए में भी नहीं है वो एज ऑन वाला पार्ट. क्लियर कट. लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर, करंट ईयर से ऐड करो और दिखा दो, खत्म. ये आउटस्टैंडिंग इज नॉट 4, इधर आंसर में मिस्टेक है, इधर 6 है. दिस इज 70,000, this is 50,500, तब 2,000 से बढ़ेगा सर. and this is 267,500. हाँ, टू 22,750. इधर आएगा 6,000, इधर 8,000, इधर आएगा 87.
487,750. ये साल किया वो लोग ने टेक्स्ट बुक में चेंज जीएसटी का. लास्ट ईयर 2 मेथड था ना अपना 11th में. याद है वो बिफोर जीएसटी पे सीडी लेने का कि आफ्टर जीएसटी पे सीडी लेने का. वो अभी एक ही कर दिया. फिर भी रॉन्ग ही है वो. पोदार मेथड अभी भी नहीं लाया. वो बिफोर जीएसटी को सीडी करने का जो एनएम में करते थे ना अपन, वो मेथड लेके आया. मेड द करेक्शन. एनएम मिट्टी बाय वाला मेथड लेके आया. यार दिस शोज हाउ केयरलेस दे आर इन मेकिंग द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. 12 लाख 10 लाख जन को जा रहा है जिधर, ऐसा टेक्स्ट बुक में लोग इतना मिस्टेक करते हैं. शोज लेथार्जी ऑफ द डिपार्टमेंट. पेपर और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का भरोसे पे कभी नहीं रहने का. कीप लर्निंग, कीप गेनिंग नॉलेज, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. इतना सोचोगे एग्जाम में इतना स्कोर कर लिया निकल जाओगे, किधर नहीं निकलोगे, उधर ही पड़े रहोगे. ओके. डोंट स्टॉप लर्निंग. ऑनलाइन कोर्सेज अभी को कॉलेज में एंड ऑल दिया है. क्रेडिट, अच्छा डिग्री को है वो तो, क्रेडिट पॉइंट्स एंड ऑल तुमको भी आएगा. कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, कॉलेज बोलता है करने के लिए, या तुमको लगता है कोई अच्छा कोर्सेज है. या सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन. 15 आवर, 20 आवर, 50 आवर कोर्सेज. ट्राई एंड गेट लर्न दोज. कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग सीखो. किसी को है कंप्यूटर्स में, लर्न दैट. कीप लर्निंग. And थोड़ा learn something that will go a long way. You will see tremendous improvement in your personality, in your skills, knowledge. थोड़ा तुमको रोज पता नहीं चलेगा, but over a period of 1 year, 2 years, there is a simple math for this. You know that compounding rule 72 मैंने बताया था, remember rule 72? बताया था रूल 72 क्या था, याद है? नहीं बोला है सर. बोला कुछ. अरे 11 में भी बोला था, 12 में भी बोला. अरे रूल 72 कितने टाइम में पैसा डबल होता है? 8. हाँ, तो 72 डिवाइड बाय रेट करोगे तो पता चलता है ना कितने टाइम में डबल होता है. 72 वालों को बोला होगा, हम लोग को नहीं बोला था. भाई तुम लोग को भी बोला था. अच्छा फिर से बोल दो. चेस बोर्ड वाला एग्जांपल क्या था? 1 का 2, 2 का 4. नहीं सर. राइस ग्रेन वाला. नहीं सर, नहीं बोला. मिट्टी बाय वालों को बोला. हाँ सर, नहीं बोला. हम लोग का अलग लेक्चर लिया. सर चालू कर दो फिर से. पावर ऑफ कंपाउंडिंग that is the 8th wonder of the world. ये याद रखना. ओके. And 72 is a very good number which you can understand. There are 2 other numbers for 10 years and 20 years and all, but सब apt majority ये use करते हैं 72 वाला कंपाउंडिंग के लिए कि कितने टाइम में your money gets double. Suppose the rate of return is 8%.
Your money gets double in how many years? 9 FD 8% भी नहीं दे रहा है, अभी 6% दे रहा है. तो 72 में 6% डिवाइड करो तो how many years the money will get double? 12 years. If you put the money in FD as an investment. Okay, PPF gives you 8%. That Sukanya Samriddhi, that gives you 8%. Okay, senior citizen gives you around 9%. FD gives you 6%. Gold has given around 12 to 15%. 12 to 14% over 40 years. So 12% is compounding of gold over 40 years. Matlab, if 72 by 12, every 6 years, over the last 40 years, gold has doubled. Every 6 years, gold has doubled. Okay, so this is how you can invest. When you earn, you can simply invest, and small sums invested over long period of time will become very huge, very huge. See, I'll just show it to you. Please keep solving. उसको बंद मत करना. तुमको एक बताता हूँ मैं सिंपल सा कैलकुलेशन. इधर एक गूगल में लोगे ना, कंपाउंडिंग एन्युइटी. देखो ये एक मिनट, एन्युइटी कैलकुलेटर डालो. Annuity calculator. Yeah. See. Starting principle. समझो. Start. इसको यार ये रुपीस वाला काम आ गया. ये भी $. अरे सर वो छोड़ो ना, हम लोग रुपीस में कर देंगे. नहीं ये एक रुपीस में कर दोगे, ठीक है. तो पहले ही सर्च में आता था. एक्चुअली तुम्हारा गूगल में ये एप्पल वाला पागल है थोड़ा, अमेरिका के पीछे. तुम्हारा मोबाइल में डालोगे ना तो सीधा रुपीस वाला कैलकुलेटर ही ओपन होता है. सर वो इंडिया डॉलर में दिखाओ, हमको मानना नहीं. ठीक है, हाँ सर. देख डॉलर में देख लो. तुम लोग सपोज यू स्टार्ट अर्निंग, ओके, एंड यू स्टार्ट सेविंग, एंड सपोज यू स्टार्ट, दिस इज इन डॉलर, वी आर टेकिंग इट इन रुपीज ही, उसको कन्वर्ट मत करना. सपोज यू स्टार्ट सेविंग 2500 रुपीज अ मंथ. मंथली आप कितना सेव कर रहे हो? 2500 रुपीज सेव कर रहे हो, ठीक है, every month, whether you are doing SIP in some mutual fund, or whether you are doing say in EPF या employee provident fund या PPF, public provident fund. 2500 का meager sum every month you put and save. Annual addition मतलब साल का कितना एडिशन करोगे तुम? 25,000 रुपए करोगे, 30,000 रुपए हर महीने, 2,500, तो साल का 30,000. एक्चुअली है ना ये साल का 30,000 के जगह पे इधर मैं मंथली डाल रहा हूँ. साल का समझो स्मॉल फिगर आई पुट, ऐसे ही साल का 0 ही रहने देते हैं. मंथली एडिशन इफ आई मेक 2,500, okay, every month you are putting 2,500 rupees, okay, and the rate of compounding generally in mutual fund over the last 40 years, it has indexed on index Nifty that has given around 15% annualized return over 40 years. Compounded annual return, that available data is there on the internet, you can check, plus dividend extra. I am taking only without dividend ka growth.
15% is the annualized growth, and let us take your time period is 25 years, 25 साल. कितना डाला है हमने? 2500 रुपीज से स्टार्ट किया, रुपीज ही है सब कुछ. हर मंथ 2500 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है. एंड तुम्हारा 15% रिटर्न कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 15%, मतलब 2500 पे 15% ऐड होता है इंटरेस्ट हर साल, और वो कंपाउंड होते जाता है. हर महीने 2500, तो साल का 30,000 ऐसा हर साल डाल रहे हो फॉर 25 years. What is your annuity balance? एक मिनट. Provide a positive annual contribution. Annual contribution and actually जरूरत ही नहीं है. One second. Yeah, see. सब डॉलर्स इसका सिंपल साला मोबाइल पे डालोगे ना, एक सेकंड में खुलता है. सबको एक्चुअली इंडिविजुअली देखो, एक मिनट मोबाइल. फाइनेंस ये भी डॉलर ही है, बट अभी चलाएंगे. चाहिए. Yeah, see. 30,000 I have taken for 25 years, compounded at 15%. Periodic deposit per period is 30,000. मतलब हर साल महीने का 2,500 है, तो 30,000 annually. So for 25 years, every year you put 30,000, interest is 15%. And what's your future value? After 25 years, this comes to unit 10s, what, 73 lakhs? 73 lakh rupees is the value at the end of 25 years for a meager sum
of 2,500 deposited annually. You getting it? So this 2,500 monthly deposit for 25 years consecutively will give you how much? 73. Now, if I make this 30,000 को थोड़ा सा बढ़ा के मैं सपोज 50,000 कर दूं, 30,000 की जगह 50,000 कर दूं मैं, 50,000 तुम डिपॉजिट करो और 50,000 एनुअली उसमें डालते रहो. 50,000 एनुअली मतलब कितना हुआ? 5,000, 4,500 रुपया महीने का हुआ. देन व्हाट्स योर फ्यूचर वैल्यू? नाउ यू विल सी. स्टार्टिंग अमाउंट में तो 5,000 आएगा ना. स्टार्टिंग अमाउंट मैंने पूरा साल का लिया है, मंथली नहीं है, ये एनुअली है. ठीक है, तो अभी ये कितना हो रहा है तुम्हारे? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज साल के डालो और 25 साल तक डालते रहो, कंपाउंडेड एट 15% पर एनम. दैट कम्स 1.2 crores. और यही तुम पीरियोडिक डिपॉजिट एक ही लमसम में डाल के छोड़ दो. एक ही लमसम में समझो, शुरुआत में तुमको कोई से पैसा मिला, पेरेंट्स से कोई गिफ्ट मिला या मैरिज पे कोई गिफ्ट मिला, वहां से तुम समझो 5 लाख रुपीज शुरू में डाल दो और फिर हर साल 4-4 हजार रुपए डाल फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years. नाउ व्हाट इज योर वैल्यू? 2.7 crores. 2.7 करोड़. मैंने क्या किया? खाली शुरू काउंट एक साल का मैंने कितना किया? 50,000 का कर दिया, खाली 5 लाख रुपीज. खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs एंड देन हर साल SIP ऑफ ओनली 50,000 अ ईयर, मतलब महीने का 4,000 रुपीज. महीने का 4,000 रुपीज over a span of 25 years will make it 2.7 CR. 2.7 CR. So this is the power of compounding I was talking about. Power of compounding का मतलब यही है कि small amounts invested over a long period of time turns into a very huge amount, very big amount. तो ये मैं तुमको knowledge का बोल रहा था, जो compounding का knowledge का part है, कि 1% if you improve yourself daily, learning wise, तुमको 100 चीजें पता है, एक चीज नया करो, one thing, 1%, okay, let it be a small thing like making a tea, making coffee, cutting vegetable, learning something new, learning a new language, a new word, or a new statement, a new sentence, a new quote, anything new, one thing new. Let us say 1%. तो 1% if you take होता है 72 divided by 1 is 72 days. साल का होता है 365 days, right? 365 days. तो within 70 you will having your knowledge to be doubled. So in a year के span 5 बार ही होगा, मतलब double, twice, 4 times, 8 times, 16 times better version of yourself than what you were a year before. Just by improving 1%. Just by improving 1% daily. That is the same logic of compounding. Okay, you can apply in many things and go home and you can calculate, you can tell me. I'll show it to you rupees में बराबर से next time अगर मिला तो. तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वेस्टमेंट में will. फिलहाल ये हो गया तुम्हारा NP हो गया, क्वेश्चन हो गया. Getting the answers? ये रहा revised answer 487,750. Tallies on 487,750. ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर. आई एम स्टार्टिंग विद शेयर्स, न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. एंड इसका भी होमवर्क आ जाएगा. एनपीओ को एक आध दो सम और बाकी है, शायद मैं दे देता हूँ, वो घर से करके आना. दैट्स इट. ओके, वेडनेसडे. सर और बैठना है तो रुको, मैं बता देता हूँ. या सर बट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है ना. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ you know Ramdev Agarwal? No. Ramdev Agarwal, he is known as India's Warren Buffett.
He started investing in the year 1978. Okay. Yes. 1978 or 1988, sorry. He started 1980 he started investing, 1980. So Yes, 1980 he started investing in stock markets and all long term investments. Okay. Now long term compounding का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप selected equities में जाओ, जैसे you are telling in share market after doing research and all. Yes. तो compounding का rate बढ़ जाता है, but you need to be sure about those companies. You have to have that patience. Sir, You yes, have but to stay for long and all those things. So Ramdev Agarwal has compounded his money at the rate of around 35% annually. मैंने जो आपको 15% रिटर्न बताया ना, हाँ, उसने 35%. 35% कंपाउंड किया. अभी मैं आपको उसका कैलकुलेशन बताता हूँ. उसने स्टार्ट किया था with 1 lakh rupees. He started with 1 lakh rupees in the year 1988. His compounding rate is 35%. Warren Buffett का compounding rate is around 21%. But with America का inflation, तो इंडिया का inflation पकड़ेंगे तो 25% compounding होता है. Yes. रामदेव अग्रवाल has compounded 35%. तो उसका compounding का rate है 35%. पीरियोडिक डिपॉजिट चलो छोड़ ही दो, कुछ डाला ही नहीं उसने. एक ही बार डाला 1 लाख रुपया 1988 से लेके अभी तक. हाउ मेनी इयर्स इट कम्स टू? अराउंड 32 years. Yes, 32. 32 years. And his compounded value, इसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ती है तो एक डाल देते हैं 1 rupee. This is his net worth as of now. Yeah. Around कितना हो रहा है? 1 अरब 14,000 crores आ रहा है ना. 100 crore, sorry, 140 crore. एक्चुअली मेरा एक 10 साल का आई थिंक उसमें भी गड़बड़ है. 42 years उसको, उसका नेटवर्थ अभी 10,000 करोड़ है. उसका नेटवर्थ अभी अराउंड 10,000 करोड़ है. 1978 होगा फिर शायद. 100 को 1000 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली आ है. 3000 करोड़ आ रहा है उसका नेटवर्थ. अराउंड अभी इज अराउंड 2016-17 से पहले कुछ 3-4 हजार करोड़ था. अभी 8-9 हजार करोड़ पे उसका. लेकिन सर वो टाइम पे 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता था ना. हाँ सर, और इतने साल बाद इतना अमाउंट ना. शेयर मार्केट में तो टेस्ला और जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया तो फिर उसका तो रोज बढ़ता है टेस्ला का तो. नहीं. See, I'll give you a simple example of a company. There is a company called Asian Paints. You know Asian Paints? Yes, Asian Paints. Asian Paints is the biggest paint making company in India. Has got around